Assalamualaikum. How are you all? I hope so you are all fine, and please stay at your homes and stay safe as the COVID is now at its worst condition. So it is better for all of us to stay at home and stay safe. This is our lecture 3, and in the previous lecture, the second lecture, we have studied about the graphical representation of direct proportion, and then we have done work example 2, in which we have find equation of direct proportion that connects that connects between x and y, and then after using the value of y, we had find x, and also when we use x, then what is the value of y, we have find it. Now we shall move to our practice now too. In our practice now too, there is first question which is similar to as work example 2. If y is directly proportional to x and y is equals to 10, then when x is equals to 2, find an equation connecting x and y. That is, we are given that if y is directly proportional to x, and when x is equals to 2, y is equals to 10, then first we have to find equation connecting x and y, and then in second part the value of y when x is equals to 10, and the value of x when x is equals to 1, then y is equals to 60. And the second question, if y is directly proportional to x and y is equals to 5, when x is equals to 2, find the value of y. Same in the case, first we find the connecting equation, and then using the value we can find the value of y at x is equals to 7. Now in question 3, we are given the table, and if we look at these values x and y, these are the complete value, where we can find that when x is equals to 5, y is equals to 10. Similarly, we can use the process of first we find connecting equation. After finding connecting equation, we can find values of y. When we put x is equals to 4, x is equals to 7, y is equals to 48, y is equals to 57, we can find the values of x and y which are missing in this table. Let's start the solution of practice now too. First, we are doing the same procedure as we have done in the previous example, in the previous lecture. First, we say that as y is directly proportional to x, this implies y is equals to kx. सेम वही चीज़ है जो हम वहाँ पे लिखते हैं, मतलब हम कहते हैं कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो उसकी इक्वेशन किसकी इक्वल होती है, y is equals to kx. First of all, here we have to find the value of k by using the values y is equals to 10 when x is equals to 2. ऊपर इक्वेशन 1 का नाम हमने इसलिए दिया ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है. Here when we use the value x is equals to 2 and y is equals to 10, we will get, by using the values we can obtain this 10 is equals to k into 2. देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 है, ठीक है, और इस तरफ 2 है, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास k के साथ, ठीक है. 2 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय k. नाउ इस 2 को हम यहाँ पर आके 10 के जब ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड कैसे होगा कि हम यहाँ पर 2 को नीचे ले आएंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, विच इज़ हेयर, यू कैन सी इट हेयर. तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू k. अब आपके पास क्या होता है कि 2 1s are 2, ठीक है, एंड 2 5s are 10. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, k इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू k, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 5. अब क्या करेंगे, ये जो k की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है, ये जो k की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको आप यहाँ पर इस जगह पे यूज़ करेंगे k की जगह पे. जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू 5x, जो कि कनेक्टिंग इक्वेशन है, ठीक है. कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, पहले हम लिखेंगे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो इसका मतलब ये कि y इज इक्वल्स टू kx होगा. नाउ एज गिवन दैट आपके पास जो y की वैल्यू है वो 10 है एट x इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू k इंटू 2. 2 इस तरह मल्टीप्लाई हो जिस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास k इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा. अब ये जो 5 है ये आपने यहाँ पर यूज़ करना. जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि कनेक्टिंग इक्वेशन होगी हमारे पास. अब इसी में हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को और फाइंड कर लेंगे. जो सेकंड पार्ट था प्रैक्टिस नाउ का, उसमें आपके पास ये था, फाइंड करनी है आपने वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल्स टू 10. अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2 का, ठीक है. अब x इक्वल्स टू 10 जो है आपके पास,
ये आपने पुट करना है यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। जब ये पुट किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 इंटू 10, y इज इक्वल टू 5 इंटू 10, और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास क्या बन जाएगा, 50, यानी y की वैल्यू आपके पास 50 आ गई जब x इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 10 आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 50। नाउ मूविंग अप टू थर्ड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है कि y इज इक्वल्स टू 60 पुट करना है आपने, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन 2 थी y इज इक्वल्स टू 5x, वहाँ पर आपने क्या पुट कर देनी है, y की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो पुट करनी है और दूसरी साइड पे 5x एज इट इज आएगा। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब क्या होगा आपके पास कि 5, ठीक है, 5 1 ज़र 5 एंड 5 कितने ज़र 60 होगा, एनीवन गेस और थिंक अबाउट इट। 5 10 से आपके पास क्या होता है, 50, तो 5 11 सर क्या हो जाएगा 55 एंड 5 12 सर आपके पास क्या होता है 60, यानी कि आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, यहाँ पे x की वैल्यू बन जाएगी 12, और यहाँ पर हम 12 इज इक्वल्स टू एक्स लिखें, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 12 लिखें तो एक ही बात है। यानी कि आपने फाइंड कर लिया जब y इज इक्वल्स टू आपके पास जब गिवन था कि 60 है तो x क्या होगा वो हमने निकाल लिया, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को सेम जैसे हमने एग्जांपल की थी वैसे ही किया है। पहले क्या किया, कनेक्टिंग इक्वेशन निकाली, कनेक्टिंग इक्वेशन निकालने के बाद फिर हमने x की वैल्यू यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकाली, फिर हमने क्या किया y की वैल्यू यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकाली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा था पहले कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल्स टू 5 व्हेन x इज इक्वल्स टू फाइंड वैल्यू y, सेम वही काम करना है हमने, इसमें वही प्रोसीजर यूज़ करते हुए जाना है। इसमें अब क्या होगा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास x के, ठीक है, गिवन है हमारे पास कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू kx, ठीक है। नाउ एज गिवन दैट कि आपके पास जो है y इज इक्वल्स टू 5 होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, y इज इक्वल्स टू 5 है जब x इज इक्वल्स टू 2 है, वही काम करना है हमने। y की अपनी जो इक्वेशन है y की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 5 इज इक्वल्स टू k इंटू 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 इधर जाके इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल्स टू 5/2 और k 5/2 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 5/2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब हम अपनी इस वैल्यू को यूज़ करते हैं यानी k इज इक्वल टू 5/2 जो आपके पास आ गया है, इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जो कि हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू kx, तो हमारे पास k की जगह जब 5/2 पुट किया तो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5/2x। ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अब वही करना है हमें, फाइंड क्या करना था, मेन चीज़ जो मैं कही गई थी वो ये थी कि अपने y की वैल्यू निकालनी जब x इज इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 7 तो y की वैल्यू क्या होगी ये हमने निकालना था। अब यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, अपनी ये जो इक्वेशन थी ये वाली y इज इक्वल टू 5/2 x वाली, यहाँ पर x की जगह पे हम 7 पुट कर देंगे। जब 7 पुट करेंगे तो हमारे पास आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 किसके इक्वल होता है 35 के, 35 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे आप कैलकुलेटर से कर लें या डिवाइड कर लें तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 17.5 के इक्वल। टर्न टू डू द पार्ट 3 ऑफ द प्रैक्टिस नाउ। पार्ट 3 में आपके पास क्या था कि एक टेबल गिवन था, टेबल में आपके पास जो कंप्लीट वैल्यूज़ गिवन थी यानी x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या होगी वो जस्ट आपको गिवन थी कि जब आपके पास x की वैल्यू 5 होगी तो आपके पास जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है 30, ठीक है। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने अपने एक तरह से कनेक्टिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश की ताकि फिर हम इसको ना जब वैल्यूज़ पुट करें x की तो y की वैल्यू ऑब्टेन कर लें। जब हमें y की वैल्यू x की वैल्यू ऑब्टेन करनी थी तो फिर हमने y की वैल्यू यूज़ कर ली जो गिवन टेबल में हमारे पास टेबल में जो गिवन थी, ठीक है। वही काम करेंगे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि हमने देखा है टेबल में और ऊपर मेंशन भी है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स, वही जो हम लिख रहे होते हैं इक्वेशन वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर भी। देन आपके पास क्या है कि आपने टेबल से क्या देखा, हम लिखेंगे कि फ्रॉम टेबल वी सी दैट y इज इक्वल टू 30 व्हेन x इज इक्वल टू 5,
ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हम y की वैल्यू डालेंगे 30 और के x की वैल्यू डालेंगे जो कि 5 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5। नाउ अब आपके पास क्या बनता है, 5 1 ज़र 5 एंड 5 6 ज़र 30 हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6 इज इक्वल्स टू के, और आप या तो आपके पास ऐसे होता है कि आप लिख देते हो इसको कि 6 इज इक्वल्स टू के है, या फिर के इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब ये जो वैल्यू है आप उस इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 1 में जब आप यूज़ करेंगे इसको, तो आपके पास जो कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 6x। नाउ अब हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, जस्ट अब हमने इसमें जो इसमें देखें तो हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू थी कि x की वैल्यू 4 गिवन थी और y की वैल्यू हमने निकालनी थी। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि इधर पुट कर देंगे, यानी अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, तो आपके पास 6 इंटू 4 24 आ जाता है, यानी y की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पे आपके पास 24 आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब जब हमारे पास 7 हम यूज़ करेंगे x की वैल्यू, तो 6 7 आपके पास क्या होता है 42, हम सिम इजीली ऑब्टेन कर लेंगे। जब फिर अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में आपके पास जो गिवन होगी वो गिवन थी कि आपके पास y की वैल्यू गिवन थी 48 आपके पास, और हमने फाइंड क्या करनी थी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 48, इसमें y इज इक्वल 48 पुट करेंगे, 6 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कटिंग जब आपके पास होगी यहाँ पर तो क्या बनेगा, यहाँ पे 6 1 ज़र 6 और 6 आपके पास 8 ज़र 48 होता है, ऐसे वो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी अगर मेरी राइटिंग यहाँ पे समझ नहीं आ रही, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट विद द विद अ टच पैड, और यहाँ पर आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हमने y की वैल्यू यूज़ की 48, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, नाउ जब हम फिर 57 डालेंगे तो डेफिनेटली 6 के टेबल में 57 नहीं आता, कटिंग नहीं हो सकती, वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट। 57 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास आ रहा होगा, जब हम यहाँ पर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 57, जब यहाँ पुट करेंगे और 6 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी वो गिवन थी 4, और ये कंप्लीट गिवन था हमारे पास। ठीक है, इधर x की वैल्यू गिवन थी, इधर 48 की y की वैल्यू गिवन थी, और यहाँ पर गिवन थी। जो मिसिंग वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो ये वाली फाइंड की हैं, 4 x इक्वल टू 4 पे आपके पास आंसर 24 आ गया, ये फाइंड किया है। फिर हमने फाइंड किया है कि जब हमारे पास x इक्वल टू 7 था तो आंसर क्या आया था 42 आया था। y इज इक्वल टू 48, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, ये निकाली और ये निकाली। ठीक हो गया, मीन्स दैट कि अब कोई भी टेबल आपके पास गिवन हो, उस टेबल में दो वैल्यूज अगर कंप्लीट दी गई, यानी x की वैल्यू गिवन हो और y की वैल्यू गिवन हो, तो वहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू ये होगी। उसको यूज़ करते हुए हम कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, विच इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट ऑन द बोर्ड। अगर आपको सिर्फ ये कहा जाता है कंप्लीट द टेबल, आप अपने रफ वर्क में पहले कनेक्टिंग इक्वेशन निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन में आप यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास यहाँ आंसर्स आ जाएंगे, आप आंसर्स इजीली निकाल सकते हैं। जब हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी तो फिर हमने जस्ट वहाँ पर x की वैल्यू यूज़ करनी होगी या y की वैल्यू यूज़ करनी होगी, और हमारे पास हम अपना कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। किसी कोई भी टेबल अगर हमें मिसिंग वैल्यूज़ हो टेबल में, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं इजीली। हम अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि इफ़ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y and x is equal to 4.5 and y is equals to 3, find an equation connecting x and y। अब पहले जो आपके पास जो गिवन होता था ना, वहाँ पर आपके पास गिवन होता था कि y is directly proportional to x, जबकि यहाँ पर अब आपके पास क्या है कि x is directly proportional to y। तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि पहले जब y इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता था तो हम वहाँ पर क्या लिखते थे y इज इक्वल टू k, लेकिन यहाँ पर चीज़ है वही लेकिन थोड़ी सी चेंज है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x इज इक्वल टू y। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x ने y को रिप्लेस कर लिया। यहाँ पर पहले हम लिखते थे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अब यहाँ पर हमारे पास x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो हम x इज इक्वल टू ky इसको लिख देंगे। ठीक है, now as given that x is equals to 44.5 when y is equals to 3, वही हम इस इक्वेशन में फिर वैल्यूज को यूज करेंगे अपनी।
जहाँ पर x है वहाँ पे 4.5 पुट कर देंगे, y की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट इट कि हमारे पास k इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 1.5 के। सेम वैसे ही है जैसे हमने अपनी एग्जांपल में देखा था, जैसे हमने प्रैक्टिस 9 में सॉल्व किया था, सेम वैसे ही इन सब क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे। कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल रहे होंगे पहले, कनेक्टिंग इक्वेशन निकालने के बाद फिर हम यूज़ करके डिफरेंट x और y की वैल्यू निकाल रहे होंगे। ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन निकालने का भी सेम मेथड है कि पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी है तो हम x इज इक्वल टू के वाई लिख देंगे या y इज इक्वल टू के एक्स लिख देंगे, अगर अपने हिसाब से देखते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो फिर हम y इज इक्वल टू के एक्स लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो फिर हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई। फिर वहाँ पर k की वैल्यू पहले निकालेंगे, k की वैल्यू हम उस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। और यही मेथड सब क्वेश्चन में सेम मेथड ही फॉलो हो रहा है इसमें। के पार्ट 2 में अब आपने क्या करना है कि आपके पास गिवन है x की वैल्यू, गिवन x की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 6। वही आप उस इक्वेशन 2 में आप पुट कर देंगे y की वैल्यू 6 और इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। नाउ व्हेन वी यूज़ x इज इक्वल्स टू 12 तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, इसी इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन आई थी कनेक्टिंग इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 1.5y, तो वहाँ पर हम x की वैल्यू 12 यूज़ करेंगे और फिर 12 डिवाइडेड बाय 1.5 आ जाएगा और हमारे पास जो कैलकुलेट करने से y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 8 हम कह देंगे इसको। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं उसमें भी यही काम है, सिर्फ x और y की जगह पे b और a आ गया। बाकी काम आपने जो करना है आपने वही करना है। ठीक है, हम ये लिख देंगे कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। इसका मतलब ये हो जाएगा कि b इज इक्वल टू के ए। वही जो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए लिख रहे होते हैं कि अगर एक चीज़ प्रोपोर्शनल है एक दूसरी चीज़ के तो हम उसे लिख देते होते हैं कि y इज इक्वल टू के एक्स या x इज इक्वल टू के वाई। तो यहाँ पर x और y की जगह पे जस्ट b और a आ गया। तो फिर हमने क्या लिख दिया कि हमारे पास था कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया b इज इक्वल टू के ए और इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। आगे फिर वही करना है हमने कि जो है b की वैल्यू हमें गिवन थी कि 3 है जब a इज इक्वल टू 12 था, तो फिर हमने वही यूज़ कर लिया, b की जगह पे 3 यूज़ किया, a की जगह पे हमने यूज़ किया 18 को और फिर हमने नीचे डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे हमने फिर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 18 को और आपके पास क्या बनता है अगर देखो तो 3 1 ज़र 3 बनता है और 3 6 ज़र 18 आता है। तो k की वैल्यू आपके पास यानी कि क्या बन जाएगी, k इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, 1/6 इक्वल्स टू k और k इज इक्वल्स टू 1/x, एक ही बात होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वाली जो k की वैल्यू आई थी यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया अपनी जो b इक्वल्स टू के ए था, वहाँ पर हमने k की जगह पे 1/6 यूज़ कर लिया, b इक्वल्स टू 1/6 a। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कनेक्टिंग इक्वेशन। अब हमने क्या फाइंड करना था, a इज इक्वल्स टू 24 पे हमने यूज़ कर a इज इक्वल्स टू 24 यूज़ करके b की वैल्यू निकालनी थी। तो जहाँ पर a था वहाँ पे हम 24 यूज़ कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा 6 1 ज़र 6 एंड 6 4 ज़र आपके पास बनता है 6 4 ज़र 24 बनता है। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 4 आता है। a इज इक्वल टू 24 पे आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, 4। सेम अभी आपने इन क्वेश्चंस में नोट किया होगा कि हम एक ही चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन निकालते हैं, जब कनेक्शन इक्वेशन हमारे पास आ जाती है फिर हम एक वैल्यू यूज़ करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम हम सब क्वेश्चन में यही चीज़ें इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपके पास दो टेबल्स गिवन है। मैंने आपको प्रैक्टिस में बताया था कि किसी भी टेबल को सॉल्व करना होता है हम पहले दो वैल्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर x की वैल्यू पे कुछ y की वैल्यू गिवन है, तो फिर हम उनको यूज़ करते हुए कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल लेते हैं। कनेक्टिंग इक्वेशन निकालने के बाद इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इधर और फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो फिर हमने यही काम किया है कि x, अब हमारे पास जो गिवन था वही गिवन था कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो फिर वही काम किया कि y इज इक्वल टू के एक्स आ गया। अब फिर जो टेबल से हमें जो वैल्यू मिली थी वो ये मिली थी कि x इक्वल टू 24 पे आपके पास y इज इक्वल टू 6 था। यही वैल्यूज़ हमने यूज़ कर ली। जब हमने इन वैल्यूज़ को एक्स वाई की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हम 24 पुट करेंगे और फिर यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई हो रहा है कि एक साथ दूसरी साइड पे जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा और जब डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 1 ज़र 6 एंड 6 4 ज़र आपके पास क्या बनता है 24। तो के की वैल्यू क्या आ गई 1/4।
ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू 1/4, एक ही बात है। के की वैल्यू 1/4 आ गई और हम जब इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/4x। अब ये आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 1/4x। अब हमने x की वैल्यू जस्ट यूज़ करनी है और हम x की वैल्यू यूज़ करेंगे या y की वैल्यू यूज़ करेंगे और अपने टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। और वो आपके पास कैसे होगा, आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ थी वो थी x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 24 पे आपके पास गिवन था कि y 6 होगा, फिर y इज इक्वल्स टू 9 और 11। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो हमने जो ये वाली वैल्यूज़ थी x इज इक्वल्स टू 24 और ये वाली यूज़ करने के बाद हमने अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल ली। अब हमने क्या करना है, जस्ट हमारे पास जो इक्वेशन आई है y इज इक्वल्स टू 1/4x, ठीक है, क्या आई थी, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 और x, ये इक्वेशन आपके पास आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आप x की जगह पे अगर आप पुट करते हैं 4, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4। सॉरी अगर मेरी राइटिंग थोड़ी हो रही है तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब देखिए जब x इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे आप, ठीक है, किसके लिए, y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, y एट, तो आपके पास जब ये जो है ये 4 इस 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 एंड दिस, तो आपके पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ही अगर आप पुट करते हैं x की जगह पे 20, तो क्या बन जाएगा, देखते हैं अब क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू, सॉरी, और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20 यूज़ करते हैं हम, तो अब क्या बनेगा, जब इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है, कटिंग करने के बाद ये हमें क्या मिलेगा, 4 1 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20, तो ये क्या बन जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही आप फिर अब y की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, y की वैल्यू जब आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास गिवन है 9, y की वैल्यू पे यहाँ पर ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं y की वैल्यू 9 यूज़ करते हैं, तो 9 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू आपके पास x आ गया। ठीक है, x आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो 4 है आपके पास, ये वाला 4, ये इधर जाके इस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू x। सॉरी फॉर माई x। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास क्या बन जाएगा, 36। ठीक है, और यहीं इसी तरह से हम जब यूज़ करेंगे y इज इक्वल्स टू 11 और दूसरी साइड 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू 4 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 44। ठीक हो गया, सेम ऐसे ही हमने दूसरा क्वेश्चन भी, इसका पार्ट भी वैसे ही करना है। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास यही गिवन है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के और y इज इक्वल्स टू के एक्स आ गया। आपके पास जो हमें जो वैल्यू मिली थी अपने टेबल में वो मिली थी कि y होगा 3.6, 1x इज इक्वल्स टू 3, तो हमने यही वैल्यू यूज़ कर ली। ठीक है, और 3 जब इधर आके डिवाइड होगा 3.6 के नीचे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2, और हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी, वो हमारे पास बन जाएगी, जो हमें कनेक्टिंग इक्वेशन मिली वो हमारे पास आ गई 1.2x। अब इसमें हमारे पास टेबल में जो हमें जो देखें अगर, तो हमें ये था 3 इज इक्वल्स टू 3 पे हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3 पे हमें 3.6 मिला था। अब हम x की वैल्यू 2 यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2.4 मिल जाएगा। ठीक है, जब हम x इज इक्वल टू 5.5 यूज़ करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.6। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। और फिर जब हम x इज इक्वल टू यूज़ करेंगे 9.6, तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा, और जब हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा।
ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड दीज वैल्यूज़। इन क्वेश्चन में आपने नोट किया होगा कि हम एक ही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने इसमें बार बार रिपीट किया है। पहले हम कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल रहे होते हैं, फिर हम एक वैल्यू यूज़ करके दूसरी निकाल लेते हैं। अगर टेबल है तो टेबल में आप फाइंड करते हैं कि किस पे आपको किस टेबल की किस पॉइंट पे आपको मिल रही होंगी कि एक्स की इस वैल्यू पर वाई की वैल्यू क्या होगी, वो यूज पिक कर लेते हैं, उसे कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं। फिर जस्ट हम एक्स की वैल्यू यूज़ करते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाती है, और यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास होमवर्क किया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने करने हैं 4 and 7 एट पेज 12 ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, एक्सरसाइज 1A ही आपने यूज़ करनी है और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो यू मे आस्क एट एनी टाइम। एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।